Hello and welcome back to the channel. This is Ramiz and you're watching my lecture series. In today's session, we have a great poem of the greatest English writer. Apparently, you are looking at his face right now, and the person is none other than William Shakespeare. William Shakespeare was born on 26 April 1564 and he died on 23 April 1616. That means he belonged to 16th century. He was the 16th century dramatist. Generally, he is considered to be the greatest dramatist in English language. You know why? The reason is that almost all of his plays are performed on the stages. They were enacted on the stage, right? And he has written almost 37 plays. These 37 plays are those plays which were found and saved by the people. There are many more plays which were not saved at that time. And he has written 156 sonnets. Sonnets is actually a form of poetry, right? Usually of 14 lines, right? Usually of 14 lines. एक ऐसी poem जिसमें 14 lines usually होते हैं विलियम शेक्सपियर के style में, right? And the poem we are talking about today is Mercy. Okay? This is a poem in class 8. The quality of mercy is an extract. Now, this is a very interesting thing to discuss. The poem Mercy is actually an extract, right? It is actually a passage from one of the famous plays of William Shakespeare, The Merchant of Venice. This is the drama, okay? Merchant of Venice, and which was written in 1598. This drama, Merchant of Venice, is a very interesting drama. बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा थ्रिल है, एंड इट्स अ कॉमेडी, राइट? उसमें एक कैरेक्टर होती है, एक हीरोइन होती है जिसका नाम होता है पोर्शिया, ओके? एंड द हीरो ऑफ दिस ड्रामा इज एंटोनियो. ये हीरो होता है एंड दिस इज हीरोइन. But we can say there are two heroes in this drama. The boy Portia married was Bassanio. Bassanio was the friend of Antonio. Okay? They were good and loyal friends, Antonio and Bassanio. Bassanio took some money from Antonio, okay? And he gives the money to Bassanio in order to marry Portia. And he marries Portia, right? And this play is famous not only because of Portia, the intelligent one, not only because Bassanio was the thrilling character, not only because because Antonio is there. No. There's one more reason कि ये play इतना ज़्यादा famous क्यों हुआ. Can you guess? No? Let me tell you that. The play got famous because of the villain, namely Shylock. Shylock was actually the villain of this drama. So intelligent and so stubborn. बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा इसको नफरत होती है एंटोनियो के साथ. तो ये दुश्मन होता है एंटोनियो का, राइट? और शाइलॉक इज बेसिकली अ ज्यू. शाइलॉक एक यहूदी होता है, राइट? और एंटोनियो जो है, एंटोनियो ही इज अ क्रिश्चियन. तो देयर इज एक्चुअली द टसल एंड द हेट बिटवीन अमंग द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस. ठीक है? तो वो एक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हेटेड ईच अदर. दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न. और दूसरा रीज़न ये था कि शाइलॉक जो था वो भी एक ट्रेड्समैन था, वो भी एक बिजनेसमैन था, एंटोनियो भी एक बिजनेसमैन था.
तो वो वाला भी एक टसल इनको बीच में रहता था हमेशा कि कौन आगे जाएगा, ओके, इन द बिजनेस टर्म्स, राइट। सो पोर्शिया जब शादी करती है बेसानियो के साथ, दे लिव अ हैप्पी लाइफ विद ईच अदर। तो जो एंटोनियो होता है उसने लिया होता है कर्जा शाइलॉक से इन ऑर्डर टू गिव दैट मनी टू बेसानियो, ताकि वो शादी करें किसके साथ, इन ऑर्डर सो दैट ही कैन गो टू बेलमोंट टू मैरी पोर्शिया। इसने एंटोनियो ने कर्जा लिया होता है शाइलॉक से। सो व्हेन द टाइम अराइव्स, एंटोनियो इज नॉट एबल टू पे द मनी बैक टू शाइलॉक। वो पैसा, क्योंकि उसने बहुत सारे उसके जो शिप्स होते हैं दैट वर इन द सी, वो अभी रिटर्न नहीं आए, वापस नहीं आए होते हैं। तो वो जब डेट आता है वापस, जब उसको रिटर्न करना होता है पैसा शाइलॉक को, तो वो अपनी डेट पर पैसा नहीं दे देता। एंड दे हैव मेड अ बॉन्ड, इफ एंटोनियो इज नॉट एबल टू पे बैक द मनी ऑन टाइम, राइट, शाइलॉक विल बी एबल टू कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। इन्होंने एक बॉन्ड बनाया था शाइलॉक ने, क्योंकि शाइलॉक को पता था कि आज मैंने इसको पकड़ा हुआ है, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो शाइलॉक जो है वो एक बॉन्ड इसको बनाता है, एंड अपियरिंग लाइक ही इज़ अ गुड मैन, ही सेज यार मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ और आराम से, कोई मसला नहीं है। तो आराम वो उसको क्या, वो बॉन्ड एक बनाते हैं जिसमें शाइलॉक एक कंडीशन रखता है कि अगर एंटोनियो ने पैसा अपने टाइम पे वापस नहीं किया, अगर उसने पैसा अपने टाइम पे नहीं दिया, तो शाइलॉक एक उसके बॉडी से गोश्त का टुकड़ा वो काटेगा उसके बॉडी से, ठीक है, जिंदा। तो एंटोनियो वॉज अ ब्रेव पर्सन एंड ही वॉज वेरी दिस करेजियस एंड वेरी ब्रेव, एंड ही न्यू कि मेरे जो शिप्स हैं समंदर में वो वापस आएंगे तो आई विल पे बैक टू शाइलॉक, लेकिन वो फंस जाता है। नाउ शाइलॉक इनको डेट पर जाता है कोर्ट में। नाउ बोथ ऑफ देम आर इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द ड्यूक, राइट, ड्यूक ऑफ वेनिस। तो बादशाह के सामने या जज के सामने दोनों बैठे होते हैं। नाउ शाइलॉक इज डिमांडिंग फॉर द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसके जिस्म से एक गोश्त का टुकड़ा चाहिए, राइट। तो सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं एंटोनियो के, वो उनको बोलते हैं यार एंटोनियो, शाइलॉक ऐसा नहीं करते हैं, हम आपके इसके बदले आपको पैसा देते हैं, लेकिन आप ये डिमांड मत करो कि आप इसको एक गोश्त का टुकड़ा काटोगे, ठीक है, फ्लश काटोगे इसका, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड इफ़ यू कट अ पाउंड ऑफ फ्लश फ्रॉम हिज बॉडी ही वुड डाई, वो मर जाएगा। तो लेकिन शाइलॉक एज आई सेड वो बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न था, उसने किसी का नहीं माना, राइट। अब पोर्शिया का कैरेक्टर आ जाता है। पोर्शिया व्हेन शी हेयर्स दिस न्यूज़, शी कम्स फ्रॉम बेलमोंट इन अ डिस्गाइज, ठीक है, वो एक रूप बदल देती हैं, वो एक मेल के डिस्गाइज में आ जाती हैं, वो मेल की सूरत इख्तियार करती हुई वहाँ कोर्ट में पहुँच जाती हैं। नाउ एवरीबडी व्हेन शी एंटर्स द कोर्ट रूम, तो सारे देखते हैं कि यार कोई आ गया विद ब्लैक कोट लाइक अ लॉयर। तो वो लेकिन लग रहा था दूर से कि ये मेल है, नॉट फीमेल, ओके। तो अब जैसे ही एंटर करती हैं पोर्शिया एज अ मैन, तो वो स्टार्ट करती हैं इसका केस लड़ना, ओके। शी आस्क्स फॉर द परमिशन फ्रॉम द जज ताकि वो उसका केस लड़े। तो जब वो केस लड़ती हैं तो स्टार्टिंग में व्हेन शी स्टार्ट्स, तो वो एंटोनियो से वो क्या करती, वो ना शाइलॉक से वो उसको बोलती हैं कि आप रहम करो इस पे, एंटोनियो पे ऐसा जुल्म मत करो। तो वो जो स्पीच एक्चुअली वहाँ पे पोर्शिया देती हैं, दैट स्पीच हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड इन योर पोइम। वहाँ से वो स्पीच लेके आपको यहाँ पोइम, अब यहाँ पोइम क्यों बनाया गया, क्योंकि द वे पोर्शिया सेड दैट लाइन्स दे वर लाइक इन पोइटिक स्टाइल, ओके। वो जैसे पोइट्री कह रही थी, उसने इस दर्द के साथ बोला था वो कि वो उसकी शायरी बन गई, उसकी पोइट्री बन गई, राइट। एंड द सेम पोम हैज़ बीन गिवन इन योर बुक, नेमली Mercy. So you have now known, you know this now. This poem of Mercy is actually a speech by Portia, one of the beautiful character in Merchant of Venice. अभी जो स्पीच है ना, पोर्शिया इसको ये स्पीच दे रही है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्ट में जज वो होते, इन फ्रंट ऑफ द जज एवन, तो वो इस मर्सी पे एक स्पीच देती हैं। एंड द स्पीच, बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्पीच, I would like to read the poem fully so that we can understand how to read the poems.
The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. It's mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the tribute to awe and majesty. Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptered sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show like God's when mercy seasons justice. Now, let us describe the first stanza. The quality of mercy is not strained. This word, the quality, strained, it means forced. कोई ऐसी चीज जो आप पर थोपी जाए, आपको फोर्स करी जाए. तो poet says that, or William Shakespeare says that, the quality of mercy is not strained. Actually this is a speech. पोर्शिया कहती हैं कि mercy एक ऐसी quality है जो कि forcefully नहीं आ सकती. You cannot force someone to be merciful. No. It droppeth as the gentle rain from heaven. Droppeth is the archaic form of drops. तो ये drops means descend, नीचे आना, उतरना. Right? It droppeth as a gentle rain from heaven. तो ये ऐसी क्वालिटी है जो कि आई हुई है, जो कि डिसेंड हुई है as gentle rain. जैसे रेन आती है हेवन से, ऐसे ही ये हेवन जन्नत से या आसमानों से ये क्वालिटी नीचे आई हुई है अर्थ पे. अपॉन द प्लेस बीनीथ, ये उस जगह पे आई है जहां पे हम रह रहे हैं. बीनीथ या मीन्स अर्थ. इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड. ओके, ये दो ब्लेसिंग्स लाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये दो इंसानों को, दो एंटिटीज को ये ब्लेसिंग्स देता है. इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स. जो रहम करता है उस पर भी ब्लेसिंग्स होती हैं, और जिस पर रहम किया जाता है उस पर भी ब्लेसिंग्स होती हैं. सो इन बोथ द केसेस समवन हु इज शोइंग द मर्सी इज ब्लेस्ड, एंड ऑन whom the mercy is showed is blessed. Okay? Now, moving ahead. It's mightiest in the mightiest. तो पोर्शिया कहती है in the courtroom, in front of judge, in front of everybody, कि it is the mightiest in the mightiest. सबसे powerful. Okay? Powerful से भी बड़ा powerful कौन है? Mercy. It becomes the throned monarch better than his crown. You know, this quality of mercy is actually better than the crown of the king. Right? So, it here refers to mercy. तो ये mercy जो है, ये उस बादशाह से भी अच्छी है, या उस crown से भी बहुत अच्छी है, better है, जो कि एक बादशाह को लगा के होता है. His scepter is authority, right? Authority is scepter. His scepter shows the force of temporal power. तो ये जो बादशाह होता है ना, now talking about the king, ये जो बादशाह होता है इसका लोगों में बहुत डर होता है कि यार बादशाह ऐसा करेगा, बादशाह वैसा करेगा. Right? The throned monarch better than his crown, his scepter shows the force of temporal power. ये जो बादशाह होता है ना, he is having the kind of power. Okay? He can deal with anything. Okay? He can kill anybody. He can do anything whatever he likes. तो इसका जो ये पावर होता है ना, okay, which is based on authority, okay, based on power, ये एक temporal power है, ये कुछ टाइम इसके साथ रहेगा. The attribute to awe and majesty, ये जो क्वालिटी, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, राइट. ये जो आप देख रहे हो कि एक ग्रैंड्योर आप देख रहे हो, बादशाह को इज्जत कर रहे हैं, बादशाह का एहतराम कर रहे हैं. ऑ एंड मैजेस्टी बोथ आर यूज्ड इन वन कॉन्टेक्स्ट. कि ये जो आप शान शौकत देखते हो बादशाह की, आप लोग सारे लोग एहतराम करते हैं बादशाह, इट इज़ नॉट एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम हार्ट, इट्स आउट ऑफ फेयर कि लोग उनको एहतराम करते हैं. नॉट बिकॉज दे लव द किंग्स, बिकॉज दे आर स्केयर ऑफ देम, they are afraid of them, वो उनसे डरते हैं. Wherein doth sit the dread
एंड फेयर ऑफ किंग्स। वो इसलिए ये करते हैं, वो उनको एहतराम और वो ग्रैंडोर इसलिए होता है उनका, क्योंकि लोगों के दिलों में बादशाह का डर बैठा होता है। देयर इज द फेयर ऑफ किंग्स। ओके, वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। बट मर्सी इज अबाउ दिस स्कैप्टर्ड स्वे। ये जो मर्सी है ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आप उस स्कैप्टर्ड स्वे से, जो स्कैप्टर्ड स्वे हियर मीन्स समथिंग विच इज नॉट फोर्स्ड। ये मर्सी एक ऐसी चीज़ है विच कैन नॉट बी डेवलप्ड वाइल फोर्सिंग समबडी। आप किसी को फोर्स करके किसी को मर्सी की क्वालिटी नहीं जगा सकते हो, उसको डेवलप नहीं कर सकते हो, राइट? तो स्कैप्टर, इट इज़ नॉट स्कैप्टर्ड वे, समथिंग विच इज़ फोर्स्ड, ये वैसा नहीं है। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ फोर्स थिंग। तो ये डेवलप हो जाता है नेचुरल, राइट? इट इज़ देयर विद इन यू। नोबडी कैन फोर्स यू टू शो मर्सी टू अदर्स, right? So it is not scapterd's way. That means it is not having that kind of authority. तो ये एक naturally इंसान के अंदर होती है. You cannot force it. Now it is enthroned in the hearts of kings. ये जो quality होती है, it is seated. Here enthroned means seated. तो ये बैठी होती है in the hearts of kings. तो आप अगर कोई बादशाह होगा, बादशाह इफ़ ही इज़ मर्सीफुल, वो इसलिए नहीं कि वो मतलब फोर्सफुली कोई बादशाह अपने आप में मर्सी नहीं जगा सकता। अगर कोई बादशाह मर्सीफुल है, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग मर्सीफुल टू अदर पीपल। वो उसके अंदर है, वो मर्सीफुल है। इट इज़ एंथ्रोन्ड इन हिम, ओके, ही इज़ इनसाइड मर्सीफुल, राइट? It is an attribute to God himself. So this is the quality of God. So whosoever is showing mercy to the people, okay, to other people, is acting like a God, because God is merciful. So this quality of mercy is the quality of God. So whosoever is showing mercy to other people is actually a godly figure, right? He's a saint, he's a priest, or she's a priest, right? So at least he or she is having the quality of God. And earthly power doth then show likest gods. तो ये जो earthly power है, जो कि temporal था, कुछ टाइम के लिए था, ठीक है, which is forced, इसको हम replace करेंगे like godly gods. आप दुनिया के इस temporal power को कैसे change करेंगे? By having the mercy, quality of mercy. And if you show the quality of mercy, you are acting like God, right? तो आप खुदा के जैसे, not God, आप खुदा की क्वालिटी आप में है, right? तो आपका ये जो temporal power है ना, it will be shifted to the power which is everlasting, which is endless. आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है? लोग आपकी इज्जत करेंगे out of heart, not because they are afraid of you. And when mercy seasons justice. So the poet or William Shakespeare, or indirectly Portia, is giving the speech to Shylock in the courtroom in front of judge. You know, she says, when mercy seasons justice. She says, mercy is the soul of justice. Mercy is the soul of justice. अगर इंसाफ होगा, उसका सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो होगा मर्सी, राइट? तो एक इंसान तभी गॉडली बनेगा जब वो किसी के ऊपर मर्सी शो करेगा. सो आई होप दिस explanation of the poem is clear to all of you. Now, talking about the poetic devices used in the poem. The first one is simile. Poetic devices, as I have been making you understand what actually poetic devices are, let me describe it once again here. Poetic devices. Devices, I told you, are actually tools. कोई भी tool जिससे आप काम करते हो. Okay? You can replace this poetic as literary. तो ये देखो, हर काम करने के लिए you have some specific tools. ठीक है? For writing you have a tool, you have a pen. आप काम करते हो किससे? पेन से, right? In order to see in the darkness, you have a light, you have a torch. That becomes a tool, right? For reading, books becomes a tool, right? For holding a mobile phone,
Okay, you have a holder, right? So for everything you need some devices, you need some tools. ऐसे ही लिटरेचर के लिए भी कुछ डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिटरेरी टूल्स और लिटरेरी डिवाइसेस. ओके, और यू मे कॉल देम पोएटिक डिवाइसेस. ओके, पोएटिक डिवाइसेस. तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, व्हाई डू वी यूज पोएटिक डिवाइसेस? बिकॉज पोएटिक डिवाइसेस हम क्यों यूज करते हैं? ताकि इससे जो आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या बने, वो क्लियर हो जाए. डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्प मिल जाती है. ओके, यू आर एक्यूरेट while using poetic devices, right? So first one is simile. Simile in Urdu is known as tashbiyah. Okay, it is actually the comparison between two things by using like or as. You see in the line, it droppeth as the gentle rain. It here refers to mercy. Okay, the poet says it droppeth as the gentle rain, as if it's a rain. Mercy is a rain. So here you see as has been used, so this is the device of simile used in the line. And the second line is, an earthly power doth then show like gods. Okay, now here like gods, ये जो earthly power होता है, right, इसको आप बनाते हो फिर godly power when you show mercy, right? I hope I'm clear. Now second device which has been used in the poem is मेटाफोर इज ऑल्सो अ कंपैरिजन. इसको भी कंपेयर किया जाता है. इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है जो कि डिफरेंट होती है नेचर में. देयर एंटिटी इज डिफरेंट, राइट? बट वी कंपेयर देम बाय नॉट यूजिंग लाइक और एज. ओके, सी इन द लाइन हियर इन द पोम, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनर्क. इट हियर रेफर्स टू मर्सी. तो ये ऐसी चीज़ होती है मर्सी. इफ यू आर हैविंग दिस क्वालिटी, इट इज़ लाइक अ थ्रोन्ड मोनर्क. एक ऐसा बादशाह जो कि who is ruling right now. So you are a ruling king if you have this quality of mercy, right? तो इसको directly compare किया है monarch के साथ. Now the second line is when mercy seasons justice. तो ये mercy जो है ये justice बन जाता है. Okay? तो इसको directly बोला गया है justice. हालांकि mercy is something different from justice. Okay? But here it has been described as the mercy becomes justice. So it is the direct comparison. So with this, I finished today's session. I described you the poem. I told you the context of the extract, right? And we talked about William Shakespeare also, and these poetic devices. I hope this session is clear to all of you. Having any query and confusions, you may write in the comment box. I need a thumbs up from your side, and you know why? Because it gives me kind of motivation to keep making and uploading the videos for you all. Thank you so much.